Today we will do the chapter number 4, The Enemy. This is from Vista book, class 12. Let's do the summary. The scene of action is a spot on Japanese coast. Dr. Sadaohuki's house was a low, square stone-built house. It was set upon rocks, well above a narrow beach outlined with the bent pines. नदी के किनारे, जापान में नदी के किनारे डॉक्टर सदाओहुकी का घर था, पत्थरों के बीच में बना हुआ. It was set upon rocks well above a narrow beach outlined with the bent pines. Sadao's father had a deep concern for his son's education. So Sadao had been sent to America at 22 to learn all that could be learned for surgery and medicine there. जो उनके फादर थे डॉक्टर सदाओ के, वो चाहते थे कि एक अपने बेटे को अच्छी एजुकेशन देना, और इसलिए उन्होंने अमेरिका में जब ये 22 साल के थे तो उनको वहां भेजा पढ़ने के लिए, ताकि वो सर्जरी और मेडिसिन में क्वालिफाई हो सके. He returned at 30. जब वो 30 साल के थे वापस आए. He became famous not only as surgeon but as a scientist also. तो जब वो वापस आए अपनी पढ़ाई पूरी करके, तो वो एक सर्जन भी थे और साइंटिस्ट भी थे. It was the time of the World War. उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर हो रही थी. जापान was at war with America. दोनों के बीच काफी लड़ाई थी, वॉर चल रही थी जापान और अमेरिका के बीच में. डॉक्टर स्टाउ had been sent abroad with troops. The old general was under medical treatment and he might need an operation. So Dr. Sudao was being kept in Japan. तो वहाँ के जो जनरल थे वो अंडर ऑब्जर्वेशन थे, मेडिकल ट्रीटमेंट उनका चल रहा था, इसलिए डॉक्टर सुदाओ को वहीं पे जापान में रखा गया था कि इनकेस अगर उनकी हालत बिगड़ती है और इन्हें इमीडिएटली कॉल किया जाता है तो ही मस्ट बी अवेलेबल. Sudao watched mist hide outlines of a little island near the shore. Then it came creeping up the beach below his house. His wife Hana came out and put her hands on his arm. It gave him pleasure. Then she laid her cheeks against his arm. तो उसकी वाइफ थी डॉक्टर सदाओ की, जिनका नाम हाना था. दोनों ऐसे ही बीच पे टहल रहे थे, हाथों में हाथ डाले हुए. At this moment, both of them saw something black come out of the mist. It was a man. He staggered a few steps. Then the cold mist hid him again. Hana and Sudao leaned over the railing of the veranda. They saw a man crawling on his hands and knees. Then he fell down on his face and lay there. They thought that it was perhaps a fisherman who had been washed from him for his boat. तो उन्होंने सडनली एक शैडो से देखी और उन्हें रियलाइज हुआ कि वो एक आदमी है जो पानी से निकला है, निकलने की कोशिश कर रहा है, उसको फिर लहरें अंदर लेके जा रही है. देन अगेन ही ट्राइड, और वो क्रॉल करके, जैसे बच्चे क्रॉल करते हैं, रगड़ के चलते हैं, वो अपने हैंड्स और नीज के बूते पे वो बाहर निकल रहा है, और उसका जो फेस है वो धरती पर ही है, और वहीं बाहर निकल के थोड़ा सा क्रॉल करके वो धरती पर लेट गया है. They thought that, उन्होंने सोचा कि ये एक फिशरमैन है जो अपनी बोट से निकला है. When they came towards him, जब वो उसके पास गए, they saw that he was wounded. तो उन्हें लगा वो आदमी जो था वो उसके काफी जख्म थे. He lay motionless, conscious नहीं था, unconscious था, होश नहीं था उसको, बिल्कुल कोई मोशन नहीं था, बिल्कुल हलचल नहीं थी, नहीं हिल रहा था. They saw his face. उन्होंने उसका चेहरा देखा. Hana whispered that he was a white man. तो हाना ने विस्पर किया ये तो व्हाइट मैन है, यानी कि अमेरिका का आदमी है. Sudao began to search for the wound. और उन्होंने उसकी बॉडी पे चेक करने लगा कि इसको ऐसी हालत में ब्लड भी निकल रहा है और इसका जख्म कहाँ है. Blood flowed freshly at his touch. जैसे उसने टच किया वहां से ब्लड का फ्लो निकल गया.
In order to stanch the fearful bleeding, he packed the wound with the sea moss. The man was unconscious. He moved with pain in his stupor, but he didn't awaken. दर्द में था वो आदमी, जख्म थे, ब्लड निकल रहा था, काफी पेन में था और लेकिन उसे होश इतना नहीं था। बेहोशी की हालत में वो कुछ न कुछ मुंह में बोलता चला जा रहा था, कहार रहा था अपने दर्द में। Siddharth muttered, "What shall we do with this man?" क्या करें हम इस आदमी का? He said that the best thing that they could do was to put him back in the sea. तो हम एक काम करते हैं, ये जहां से आया वहीं पे सी में इसे वापस डाल देते हैं। हाना एग्रीड विद इट। हाना उसकी जो वाइफ थी उसने कहा, हाँ ठीक कहा, हम इसे वापस वहीं भेज देते हैं। So now I explained that it was a difficult situation. If they sheltered a white man in their house, they would be arrested. उनका ये तो बहुत सिचुएशन बहुत गलत हो जाएगी, एक डिफिकल्ट हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर हमने एक व्हाइट मैन जो वॉर में अब अमेरिका और जापान की चल रही है, अगर एक व्हाइट मैन को उन्होंने शेल्टर दिया, अपने घर के अंदर लेके गए, तो हो सकता है वो भी अरेस्ट हो जाए और उन्हें जेल हो जाए, मे बी वो मर जाए। इफ दे टर्न हिम ओवर एज अ प्रिजनर ही वुड सर्टेनली डाई। लेकिन अगर हम इसको दे देते हैं, हैंड ओवर कर देते हैं, तो ये पक्का मर जाएगा उनके हाथों। They were staring upon the inert figure with a curious repulsion. तो आपस में बहुत एक दूसरे को देखने लगे कि क्या करें, यही कंफ्यूजन चल रही थी। Then they tried to find out what he was. तो उन्होंने फाइंड आउट करा कि देखें तो सही व्हाइट मैन है लेकिन कहाँ कहाँ है। He looked American. तो दिखने में तो वो अमेरिकन था। The battered cap had faint lettering US Navy. उसके जो कैप थी उसके ऊपर यूएस नेवी लिखा हुआ था। They concluded that he was a sailor from an American warship. The man was prisoner of war. He had escaped and was wounded in the back. उसकी बैक में जख्म था और वो वहां से भाग रहा था वॉर से। एक अमेरिकन था, एक सेलर अमेरिकन जो वॉरशिप थी, वहां से वो भागकर आया था और जब वहां से भागा होगा तो वहां पे उसकी जो बैक में है वो इंजर्ड हो गया। Hana asked Sadao if they were able to put him back into sea. Sadao hesitated. अब हाना ने कहा कि चलो इसे वापस समुद्र में डाल देते हैं। Sadao थोड़ा hesitate किया। If the man had been whole, he could turn over the police without difficulty, as he was his enemy. All Americans were his enemy. But since he was wounded, they should not throw him back to sea. उसने कहा कि हमारे अमेरिकन ठीक है, वॉर चल रही है, एनिमी है, हम पुलिस को भी हैंड ओवर कर सकते हैं, और लेकिन ये इसके जख्म बहुत हो गए हैं, बहुत घायल है, तो हम इसको वापस कैसे भेज दें, वापस सी में कैसे डाल दें। Hannah observed that there was only one thing left to do. They must carry him into their house. So Sadao was not sure about the reaction of the servant. Hannah suggested that they must tell the servant that they had intended to give him to the police. She said that they must do so, otherwise all of them would be in danger. तो हाना कहती है, ऑब्जर्व करती है कि ठीक है, एक काम करते हैं, इसको हम अपने घर के अंदर लेके जाते हैं। तो सदाओ ने कहा कि क्या रिएक्शन होगा हमारे सर्वेंट्स का। तो हाना ने सजेस्ट करा कि हम अपने सारे सर्वेंट्स को बता देंगे कि हम इसको ठीक करने के बाद पुलिस में देने वाले हैं, इसलिए हम इसको अपने घर के अंदर लेकर आएंगे। और वो जरूर बोलेंगे ऐसा, नहीं तो वो एक डेंजर में फंस जाएंगे, खतरे में पड़ जाएंगे। Together they lifted the man. He was very light. They carried him up the steps into the side door of the passage. They carried him to the empty bedroom. Since the man was quite dirty, Sadao suggested that he had been better be washed. If he fetched the water, he would wash the man. Hannah could not bear him to touch the man. She offered to tell the maid Yumi. Sadao took the responsibility of informing others. तो जब उन्होंने कमरे के अंदर लेकर आए, उन्होंने उठाया और वो काफी हल्का था और उसे कैरी करके अपने घर के अंदर ले गए। और जब उन्होंने खाली कमरे में उसको लिटाया, बेडरूम में खाली बेडरूम में
लिटाया। और जो मैन था ऑब्वियसली बहुत डर्टी था, उसके कपड़े वपड़े सब मैले से हो गए थे, गंदा सा लग रहा था, डर्ट थी बहुत ज्यादा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इसको पहले हम वॉश करते हैं। तो उसने कहा अगर तुम पानी ले आओगी तो मैं इस आदमी को वॉश कर सकता हूँ। तो उसने कहा कि मैं तो टच नहीं करना चाहती, मैं कैसे बर्दाश्त कर लूँ ये वाइट मैन को टच करने से। तो उसने कहा कि मैं अपनी मेड यूमी को बुलाती हूँ और उसे मैं ऑर्डर देती हूँ कि आप यूमी जो है इसको क्लीन अप कर देगी। और सिद्धार्थ ने कहा कि ठीक है, मैं अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि मैं बाकियों को भी इन्फॉर्म कर देता हूँ। The pallor of unconscious man's face moved him first to stoop and feel his pulse. उसने पल्स चेक करी उसकी, it was faint but it was there. धीरे धीरे चल रही थी लेकिन पल्स चल रही थी. He put his hand against the man's cool breast. The heart was yet alive. Heartbeat चल रही थी. Sadao observed that he would die unless operated upon. उसने रियलाइज करा कि हार्ट बीट काफी कम हो गई है, पल्स रेट भी डाउन जा रहा है और ऑपरेट करना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये आदमी मर जाएगा. The man was very young, perhaps not even 25. यंग था, 25 साल का भी नहीं लग रहा था. The man had to be washed first, लेकिन इसे साफ करना जरूरी था क्योंकि इन्फेक्शन फैल सकता था. However, the servant refused to do so. सारे servants ने मना कर दिया. They did not want his master to heal the enemy. या वो नहीं चाहते थे कि उनका जो मास्टर है, जो सजाओ है, उसकी वाइफ हाना है, वो उसे ट्रीट करे एनिमी को. Hana washed the man till his upper body was quite clean. Sadao put his instruments upon a sterilized towel. He began to wash the man back carefully. He asked Hana to give the anesthetic he needed it. Hannah choked. She clapped her hand to her mouth and ran out of the room. He heard her wrenching in the garden. She had never seen an operation. अब जब हाना ने उसे वॉश किया, वो ना चाहते हुए उसको वॉश किया, उसके ऊपर की बॉडी क्लीन करी, तो उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट लिया और स्टरलाइज टॉवल लिया, उसकी बैक को वॉश करना शुरू करा है. और उन्होंने कहा कि ठीक है, आप हाना को बोला हेल्प करने के लिए. हाना ने एकदम जब जैसे उसको एंथीसिया दिया, बेहोश करने की दवाई दी, तो उसने चौक हो गई वो. when she clapped her hand to her mouth कि तौबा तौबा जैसे करते हैं वो करती हुई बाहर भाग गई, क्योंकि उसने कभी भी ऑपरेशन होते हुए नहीं देखा था. Sidao proceeded swiftly. Hannah came in. Sidao asked her to saturate the cotton and hold it near the nostril. उसने कहा कि आप कॉटन को सैचुरेट करके और मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ, मुझे पकड़ाओ, अब मैं उसकी नाक के पास लेकर आओ. She had to move it away a little when he breathed badly. तो थोड़ा सा वो दूर हो गई क्योंकि उसकी सांसें तेज चल रही थी और बहुत बैडली वो ब्रीथ कर रहा था. Then Sadao got busy. वो बिजी हो गया ऑपरेट करने में. He felt the tip of the instrument strike against something hard. तो उसका जो इंस्ट्रूमेंट था जो उसने अंदर डाला हुआ था वो किसी हार्ड चीज से हिट हुआ, अंदर स्ट्राइक हुआ. It was just near his kidney के पास था. Then with the cleanest and most precise incision, the bullet was out. और धीरे धीरे करते हुए जो गोली उसके अंदर थी वो वहां से निकल गई. Then the man cured, but he was still unconscious. चीखा, थोड़ा सा दर्द हुआ, लेकिन अभी भी वो हल्का सा बेहोशी की हालत में ही था. Sadao gave him an injection. एक इंजेक्शन उसने दिया. Man's pulse grew stronger. उसकी पल्स चलने लग गई. Hannah had to serve the young man herself, for none of the servants would enter the room. अब कोई रूम के अंदर कोई सर्वेंट नहीं आ रहा, तो हाना को ही उसको सर्व करना था, उसकी देखभाल करनी थी. The man grew stronger day by day. दिन ब दिन वो ठीक होता गया आदमी. The servant decided to quit if their masters kept the enemy hidden there. तो सर्वेंट्स ने बोला कि अगर आप इसे छुपा के अपने घर में रखोगे तो हम तो यहाँ से जा रहे हैं. On the seventh day, the servant left together. और 7वें दिन वो सर्वेंट्स जो है वहां से चले गए. Hannah carried the morning food to the prisoner. जो कैदी था उसके पास वो खाना वाना लेकर आई सुबह. On coming back, she asked now why they could see clearly what they ought to do.
कि आप क्लियर देखो कि हम लोग क्या कर रहे हैं. So now, in the afternoon, a messenger came in official uniform. He asked Dr. Sadao to come to the palace at once. As the old general was in pain, Hannah breathed a sigh of relief. When Sadao came to say goodbye, she revealed her fear. She had thought that they had come to arrest him. Sadao promised to get rid of that man for her sake. तो जब आफ्टरनून का दिन था, एक मैसेंजर उनके पास आया और उन्होंने कहा कि जनरल की जो तबीयत ज़्यादा खराब हो गई है और जो वो पेन के अंदर है, तो आपको हमारे साथ चलना है. और वहां से जब हाना को थोड़ा सा डर भी लगा कि कहीं जनरल को ये ना पता लग गया और अब हमारी जो है वो हम अरेस्ट होने वाले हैं. Sadao told the general about the man he had operated upon. The general acknowledged why Sadao was indispensable to him. The general promised to send his private assassins to kill the man and remove his body. He asked Sadao to leave the outer partition of the white man's room to the garden open while he slept. तो जनरल को उन्होंने बता दिया कि ऐसी ऐसी बात है और मैंने उसकी हेल्प करी, वो ठीक हो गया. तो उसने कहा कोई बात नहीं, मैं आदमी भेजूंगा और उसको मार देंगे, तुम रूम से दूर रहना. जब वो सो जाएगा तो व्हाइट मैन को वो आके मार देंगे. Sadao went home thinking over a plan. कुछ प्लान सोचते सोचते घर आया. He would tell Hannah nothing. उसने हाना को कुछ नहीं बताया. He was surprised to see the young American out of the bed and preparing to go into the garden. उसने देखा कि ये तो बिल्कुल ठीक हो गया और गार्डन में जाने के लिए बिल्कुल तैयार है. He complained that the muscle on one side felt stiff. कि एक जो मसल है वो अभी भी थोड़ा सा उसमें पेन है और बहुत अकड़ी पड़ी है, स्टिफ है. डॉक्टर सुदाव सेड दैट एक्सरसाइज एंड मसाज विल बी हेल्पफुल. कि आप थोड़ी, उन्होंने बोला कि आप थोड़ी मसाज करो, एक्सरसाइज करो, तो वो जो मसल है उसका भी इलाज हो जाएगा. He then asked Tom, the young American, to go to the bed. अब उसने अमेरिकन को बोला कि तुम जाओ और वहां जाके अपने बेड पे सो जाओ. सुदाव slept badly at that night. और वो सुदाव जो था वो भी अपने बेड पे सो गया. Dr. Sadao told him that he was quite well then. He offered to put his boat on the shore that night. It would have food and extra clothing in it. Tom might be able to row to that little island not far from the coast. He had not been fortified. Nobody lived there as it was submerged in storm. Since it was not the season of storm, he could live there till he saw a Korean fishing boat pass by. तो डॉक्टर सदाव ने एक प्लान बनाया था कि मैं चुपचाप एक बोट जो है नदी किनारे छोड़ दूंगा और उसमें कुछ फूड भी, खाने के लिए सामान और कुछ एक्स्ट्रा कपड़े रख दूंगा. और टॉम जो होगा वो अपनी किसी नियर बाय आइलैंड, जो उसको उसके नियर बाय आइलैंड में वहां चला जाएगा और तब तक वो वहां रहेगा. इस अभी तो कोई तूफान वगैरह भी नहीं आने वाला है, तो इस सीजन में वो आराम से एक आइलैंड पे पहुंच जाएगा और तब तक वो वहां रहेगा जब तक एक कोरियन फिशिंग बोट उसके पास से ना गुजर जाए. As soon as it was dark, Sadao made preparation to help the young man escape. He gave him his flashlight. He asked him to give him 2 flashes as the sun set in the case his food ran out. तो उसने कहा तुम पास के टापू में चले जाओ और अगर यहाँ से भाग जाओ और ऐसे ऐसे मैंने अरेंजमेंट किया और तुम मुझे 2 फ्लैशेस देना जब सनसेट होने लगेगा, अगर तुम्हारा जो फूड है वो खत्म हो जाएगा तो. In case he was still there and all right, अगर वो जिंदा हो तब तक. He was to signal him only one. He was warned not to signal in darkness, for it would be seen. तो उसने कहा कि ज्यादा डार्कनेस होगी तो उसमें सिग्नल बिल्कुल मत देना. जब सनसेट होने लगे, आधी दिन हो और आधा अंधेरा हो, तो तभी तुम मुझे सिग्नल देना अगर तुम वहां पे जिंदा हो. The prisoner was now dressed in Japanese clothes. उसने अपने Japanese clothes में उसको ड्रेस कर दिया, अमेरिकन को. A black cloth was wrapped around his ब्लॉन्ड हेड. जो उसके बाल थे, सुनहरी बाल थे, उस पे भी ब्लैक क्लॉथ बांध दिया गया.
He found the way to the boat. Sadao waited till he saw one flash from the shore. और उसने कहा कि ठीक है, मैंने बोट तो कर दिया और एक फ्लैश का उसने वेट करा कि जब वो किनारे पे पहुंच जाए. Dr. Sadao had been called in the night to perform an emergency operation on the journal. It involves his bladder. तो उसी रात को वहाँ जनरल से इमरजेंसी कॉल आया, ऑपरेशन करना पड़ा और गैल ब्लैडर जो था उनका ऑपरेट करना था. For 20 hours Sadao has been sure the journal would live. कि उसने कहा कि मैंने ऑपरेशन तो कर दिया और 24 घंटे तक जर्नल जो है वो स्टिल रहेंगे, अपने ठीक ठाक रहेंगे. Then he began to breathe deeply again and demanded for food. Sadao had been able to ask for the science. So far he knew that they have never come. तो उसे पता था कि वहां के भेजे हुए लोग नहीं आएंगे क्योंकि जर्नल इस पोजीशन में नहीं था उसको भेजने के लिए. द सर्वेंट्स हैड रिटर्न, वो वापस आ गए थे. द रूम वाज क्लीन, तो सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो गया था. 1 week after the operation, Sadao felt the general was well enough to be spoken to the about the prisoner. तो उसने कहा कि अब जनरल की तब तो तबीयत खराब थी, मैं ज्यादा बोल नहीं पाया. उन्होंने तो मुझे आश्वासन दिया था कि मैं ऐसे भेजूंगा उसे मारने के लिए, लेकिन उसके आदमी भी नहीं आए. तो अब वो ठीक हो गए. तो लेट्स टॉक अबाउट द प्रिजनर. Sadao informed him the prisoner had escaped. तो उन्होंने उसको सदाओ ने बता दिया जनरल को कि अब कोई जरूरत नहीं अपने आदमी भेजने के लिए, वो तो वहां से भाग गया. The general asked the doctor whether he had not promised to kill the man for the doctor. He then confessed the truth. और उसने प्रॉमिस भी ले लिया कि अगर आप मुझे सच, मैं आपको सच बता दूंगा अगर आप उस आदमी को नहीं मारोगे तो. He had been suffering a great deal. तो ये डील उन्होंने कर ली. So he thought of nothing but himself. He had forgotten his promise. That night Sadao waited at the dusk for light from the island. तो वहां पे उसने अपना प्रॉमिस वो भूल गया करके. और सदाओ ने जब जब इवनिंग हुई, थोड़ा लाइट हुई, तो उसने कहा कि शायद अब वहां से सिग्नल मुझे मिलेगा आइलैंड से. देयर वाज नन, वहां से कोई सिग्नल नहीं मिला. हिज प्रिजनर हैड गॉन अवे एंड वाज सेफ. तो वहां चला गया, वहां से भी निकल गया और वो सेफ है. Sadao wondered he could not kill the young man, though white people were repulsive. तो उसे अभी तक समझ में नहीं आ रहा था कि उसने उस आदमी को क्यों नहीं मारा जबकि वो उसका दुश्मन था. और जापान और अमेरिका के बीच में जो वॉर चल रही थी और उसमें काफी डिफिकल्टीज का वो लोग सामना करे. तो आज भी वो आश्चर्य था कि भाई एक व्हाइट मैन उसके पास आए, इजली वो उसका एनिमी था, उसे मार सकता था, लेकिन उसने उसको मारा क्यों नहीं, और उसने उसकी जान बचाई. एज अ डॉक्टर उसका प्रोफेशन था. तो सो दिस वाज द स्टोरी. प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर फर्दर वीडियो. थैंक यू ऑल.